السلام علیکم ساتویں جماعت میں بیٹھے پیارے بچوں. میرا جو آج کا سبجیکٹ ہے وہ ہے انگریزی انگلش. ٹاپک جو میں نے لیا ہے آج میڈ ٹی پارٹی. میڈ ٹی پارٹی ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں یہ جب آپ اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے انگلش کی 7th میں تو وہاں پر آپ دیکھ پائیں گے لیسن نمبر 4 میڈ ٹی پارٹی. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں آج اس کا ایک پیراگراف ہم لے لیں گے, ایک سٹنزا لے لیں گے اس کا پہلا. تو یہاں پر میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کر کے لکھے ہیں, نوٹ کیے ہیں یہاں پر, تو آپ دیکھیے. جب میڈ ٹی پارٹی کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے, ایک بہت بڑی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے ایلس ان ونڈرلینڈ. میں یہاں پر لکھتا ہوں ایلس ان ونڈرلینڈ. دیکھیے اس کتاب سے ایک حصہ لیا گیا ہے, ایک چھوٹی سی کہانی بنا گئی ہے, ایک کرکس نکالا گیا ہے, سمرائز کیا گیا ہے. تو ایک شارٹ سٹوری اب بن گئی ہے. تو یہ شارٹ سٹوری ہمارے سامنے موجود ہے کس صورت میں؟ میڈ ٹی پارٹی. میڈ ٹی پارٹی کی صورت میں یہ ہمارے سامنے موجود ہے. 7th انگلش میں آپ دیکھ رہے ہیں تو لیسن نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں ایک بک ہے یہ, ایلس ان ونڈرلینڈ, ایلس ان ونڈرلینڈ. تو وہاں سے ہی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ایک سمرائز کیا گیا ہے اس کو. تو ایک چھوٹی سی کہانی بنائی گئی ہے. تو میڈ ٹی پارٹی کا نام دیا گیا ہے اس کو. تو لیسن نمبر 4 کی صورت میں ہمارے سامنے اب دیکھنا ہے. یہ اس کا جو مصنف تھا وہ تھا لیوس کیرول. لیوس کیرول. لیکن لیوس کیرول اس کا اصلی نام نہیں تھا, یہ اس کا پین نیم تھا. ٹھیک ہے. قلمی طور پر ایک اپنا نام دیا جاتا ہے آج بھی, اور پہلے بھی دیا جاتا تھا. تو پیارے بچوں اب اس کا یہ پین نیم رکھا گیا تھا لیوس کیرول. تو اصل جو نام اس کا تھا چارلس لٹویچ ڈوجسن. چارلس لٹویچ ڈوجسن. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا اصلی نام تھا. جو لکھنے میں اس کا نام دیا گیا تھا وہ تھا جس کو ہم کہیں گے پین نیم. تو پین نیم اس کا لیوس کیرول رکھا گیا تھا. چنانچہ یہ انگلش رائٹر تھا, انگلش رائٹر تھا. تو انگریزی میں لکھا کرتا تھا تو انگلش رائٹر بن گیا. تو انگریزی زبان زیادہ استعمال کرتا تھا لکھنے میں, کہانیاں لکھنے میں, کتابیں لکھنے میں. تو انگلش رائٹر اب کہنے لگا. تو پیارے بچوں یہ چلڈرنز فکشنز زیادہ تر بچوں کے بارے میں لکھا کرتا تھا, کتابیں بناتا تھا, کہانیاں لکھتا تھا زیادہ تر بچوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو چلڈرنز فکشنز میں یہ کافی مشہور تھا, یہ کافی مشہور تھا. تو پیارے بچوں تھوڑی سی جانکاری اور بڑھائیں گے. تو 27 جنوری 1832 کو یہ پیدا ہوا تھا. کون؟ لیوس
कैरल, लेविस कैरल 27 जनवरी 1832 को पैदा हुआ था। कहाँ? एक शहर है डैर्सबरी, यूनाइटेड किंगडम में है ये शहर डैर्सबरी, तो जहाँ पर ये पैदा हुआ था। अब उसकी जो यौम वफ़ात हम कहेंगे तो डाइड, ये यौम पैदाइश मैंने आपको कह दी, तो अब यौम वफ़ात ये कब मर गया था? 14 जनवरी को 1898 में, 14 जनवरी को 1898 में। तो कहाँ पर, किस शहर में? गिल्डफोर्ट, गिल्डफोर्ट यह भी यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है, तो वहाँ पर उसकी वफ़ात हुई, वहाँ पर ये फोत हुआ। तो प्यारे बच्चों, एल्स इन वंडरलैंड किताब का नाम, एक बड़ी किताब, वहाँ से क्रक्स निकाला गया, एक शॉर्ट स्टोरी बनाई गई, तो ए मैड टी पार्टी की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। हमारा जो चौथा लेसन नंबर 4 हमारी किताब में जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है वहाँ पर मौजूद है। आप किताब खोल दीजिए, आपने सामने रखिए और देखिए ए मैड टी पार्टी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एल्स का रोल रहता है, एक छोटी लड़की है एल्स, एल्स स्मॉल गर्ल। ये छोटी लड़की एक बार घूमने फिरने गई, वहां पर उसकी नजर पड़ी एक वाइट रैबिट पर, वाइट रैबिट। किस पर नजर पड़ी? सफेद खरगोश पर उसकी नजर पड़ी, और जिसकी आंखें गुलाबी थी, पिंक आइज, ठीक है, और उसका कोट पहना हुआ था, और उसका कोट पहना हुआ था। तो ये जानकर हमें हैरानी होगी, अगर ये सफेद खरगोश था, आंखें तो उसकी पिंक थी, ठीक है, कोट पहना हुआ था, ये तो कुछ हैरान वाली बात है। इसमें कुछ हैरानगी होती है, कुछ ताज्जुब सा लगता है कि कोट क्यों पहना हुआ था। तो जब इस पूरी कहानी को हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें बिल्कुल मिलता है कि ये जैसे इंसान बातें करता है, आप और मैं, हम बातें करते हैं, तो ये भी ऐसे ही बिहेव करती है, ये वाइट रैबिट ऐसे ही बिहेव करता है। तो जैसे इंसान बातें भी ऐसे ही करता है, जैसे इंसान करता है, जैसे हम करते हैं, आप करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसका कोट पहना हुआ था, तो कोट से उसने एक वॉच निकाली, एक घड़ी निकाली, जेब में घड़ी थी तो बाहर निकाल दी घड़ी, हाथ में रखी, और ह्यूमन वॉइस, जैसे हम बातें करते हैं, बिल्कुल इंसान की तरह बातें करने लगी। कौन बातें करने लगा? ये वाइट रैबिट बातें करने लगा ह्यूमन वॉइस में। तो कहा क्या? ओ डियर, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ओ डियर, आई शैल बी लेट,
I shall be late. Oh dear, I shall be late. अरे प्यारे, मुझे देर हो रही है. मुझे देर हो रही है. किस चीज की देरी? कहाँ जाना था उसे? तो यहाँ पर लिविस कॉर्ल ने लिखा था अपनी इस कहानी में, इतना कहने के बाद वो दौड़ के चला गया. कौन? ये व्हाइट रैबिट. इतना कहने के बाद वो दौड़ के चला गया. तो सामने से उसको एक फील्ड आया, एक मैदान आया, एक बहुत बड़ा मैदान आया. तो मैदान के साथ साथ आगे से एक जंगल भी था. आगे से एक फॉरेस्ट था, एक जंगल था वहां पर. तो वहां पर एक सुराख था. इस जंगल के बिल्कुल शुरू में, मैदान में दौड़ते दौड़ते ये बिल्कुल जंगल के साथ में पहुंचा. तो वहां पर एक सुराख था. तो ये सुराख में चला गया. एक होल था, एक सुराख था वहां पर. तो बिल्कुल ये उसी में चला गया. तो वहां पर क्या हुआ? बिल्कुल गायब हो गया. तो जो एलिस थी, ये छोटी लड़की, ये हैरान हो गई. ये व्हाइट रैबिट, ये सफेद खरगोश, गुलाबी आंखों वाला, कोट पहना हुआ, जेब से वॉच निकाली, घड़ी निकाली, तो ह्यूमन वॉइस में बात की, इंसान की तरह बात की और कहने लगा, ओ डियर आई शैल बी लेट. ये सारी बातें जब एलिस ने सुन ली, कुछ हैरान हो गई, कुछ परेशान हो गई, कुछ ताज्जुब हुआ उसको. अब भाई ये क्या बात है? ये व्हाइट रैबिट बातें कर रहा है, कोट पहना हुआ है, अपनी जेब से घड़ी निकाल दी, टाइम देखा, वक्त देखा. तो ये कहा कि ओ प्यारे, मुझे देर हो रही है. तो सामने से जब फील्ड आ गया, एक मैदान आ गया, तो आगे जंगल था. तो जंगल में क्या देखा कि वहाँ बिल्कुल एक सुराख बना हुआ था, एक बिल बना हुआ था. तो बिल्कुल उसी में चला गया ये व्हाइट रैबिट, ये सफ़ेद खरगोश उसी में चला गया. तो एल्स ने जब ये देखा, बिल्कुल पीछे पीछे भागी. तो भागते भागते ये भी उसी सुराख में चली गई. तो जब दूसरे सिरे से बाहर निकला कौन? व्हाइट रैबिट. तो पीछे पीछे से कौन जा रहा था? एल्स, छोटी लड़की. तो दूसरे सिरे से वहां एक वंडरलैंड आ गया. कहाँ पहुंच गई? वंडरलैंड. तो वंडरलैंड में पहुंचकर उसने एक पूरा बहुत बड़ा मैदान देखा. ठीक है, बहुत बड़ा इलाका पाया. किसने? एल्स ने, छोटी लड़की ने. तो प्यारे बच्चों, अब वंडरलैंड में क्या पाया, क्या देखा, क्या सुना, खुद क्या बात की उसने, छोटी लड़की ने. तो ये सारी जो दलील है हम इंशाल्लाह कल के लेसन में पढ़ेंगे. पहला स्टैंजा, पहला पैराग्राफ हमने मुकम्मल कर दिया. तो प्यारे बच्चों, आपकी कोशिश भी यही रहेगी, आप किताब खोल दीजिए,
लेसन नंबर 4 निकाल दीजिए, ए मैड टी पार्टी। वहाँ पर आपको यह पैराग्राफ मिलेगा, पहला पैराग्राफ। तो इसको स्टडी कीजिए, उसका मुताला कीजिए, उसको पढ़िए, तो वहाँ पर आपको ये सब कुछ मिलेगा जो मैंने आपके साथ बात की, जो मैंने आपके सामने रखा, जो मैंने वजाहत की इस पैराग्राफ की, इस स्टंजा की। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल देखेंगे कि वंडरलैंड में क्या हुआ, क्या पाया, क्या खोया, क्या देखा। तो प्यारे बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।